Warm greetings, everyone. On behalf of Friday Waters, an initiative of the W for W Foundation, a think tank built as Citizens Collective, we welcome you to today's session of Friday Water Arts. Friday Waters is a continuation of signature series Wednesdays for Water. The activities initiated as Friday Water series includes Water Talkies, Water Reading Club, Water Thesis Club, Water Arts, and Meet a Maestro, which takes place once a month depending on the availability of our speakers. The idea of Friday Waters is to bring the water knowledge available in alternate forms other than science at one place to highlight the opportunities and challenges related to water. The idea is also to increase the outreach of the alternate water knowledge and scholarship which is available in the water networks as well as in the society at large. The Friday Water sessions are designed to be fun-filled and yet fruitful to learn about the water matters. Do keep following us at www.w4w.in in regular updates. My name is Mansi Bal Bhargav and I am the host for today as well as from W4W. Today's session is on rainscape and water management illustrations, and we have Kanhaiya Lal Patel, also very well known as Kanu Bhai Patel in our network, especially in Gujarat. I know his work for quite long time. So before I invite Kanu Bhai, I first of all want to thank him because with just one request, he agreed to do this session. And also, I'm really grateful because I have been looking at his work for quite some time, but I would also like to put on record his exemplary work over many years. Kanhaiya Lal sir did his arts teachers diploma in 1984 in painting from faculty painting department at Kala Kendra College of Fine Arts. He's also founder, honorable principal of CVM College of Fine Arts, Vallabh Vidyanagar. He is currently honorable director of CVM College of Fine Arts and Pitkowala Santram College of Fine Arts, Vallabh Vidyanagar. He's also president of the Anarth Art Association Gujarat and Lajja Rangmanch in Anand, Gujarat. He has several awards, but just to keep the time, I will keep it short for all of us and so that we can hear from him and get to look at his work. Recent awards includes the Sanskruti Samvadak Award 2024 by Kalatirth at Bhuj and Akhil Bharatiya Sahitya Parishad Varsh Pratipad Sarjak Samman Award 2024. Among many awards, other awards, Bharat Kala Ratna in 2016 by Gujarat Kala Parishthan and Gaurav Puruskar 2010-11 by Gujarat Lalit Kala Academy, specially honored by Honorable Chief Minister of Gujarat in 2004, Shri Narendra Bhai Modi. And he has won several awards right since his art diploma, as I mentioned, for example, 16th Gujarat State Yuak Mahotsav, right from when he started his work. Some of his best paintings awarded are Padma Shri Kripal Singh Shekhawat Samman 2020, Amrita Shergill Birth Anniversary All India Art Exhibition 2016. And I can really go on and on. But importantly, what struck me about his work and why I really reached out to him to share his wisdom about artwork is the sketching I have seen in several works from EME conferences. So thank you, Kanubhai, for accepting our invitation and also agreeing to share your time and valuable wisdom with us. So over to you, and I really appreciate that you have agreed to do this. And please present your work. थैंक यू वेरी मच हंसी जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए कि जैसे मेरी ये मैं बताता हूँ कि ये शुरुआत बारिश तो मेरे लिए बहुत ही पसंदीदा चीज़ थी जी और मैं खेतों से भी जुड़ा हुआ हूँ। विसनगर में मेरा जब जन्म हुआ तब मैंने भैंसें भी चराई हैं और खेती-बाड़ी भी की है। जी तो पानी की कीमत क्या है वो मुझे पता है। जी तो लेकिन जब आर्ट के फील्ड में मैं आया तो जब 2005 में बहुत हाँ बड़ा यहाँ पे बारिश बहुत हुई थी। जी तो उसको लेकर के मेरी एक बहुत ही प्रोमिनेंट सीरीज़ जो रेनस्केप करके थी, हाँ जिसमें मैंने वाटर एंड एनार्की, वाटर एंड व्हील ऐसी हाँ पूरी एक सीरीज़ बनाई है। मैं उसके कुछ बताता हूँ और फिर मैं जैसे आपने यूमी के इलस्ट्रेशन के बारे में बताया तो हाँ फिर मैं उसके ऊपर आता हूँ कि कैसे वो सिंप्लीफिकेशन होता है और उसमें कैसे एक चीज़ को हम एडॉप्ट जी करके ये कम्युनिकेशन करते हैं आर्ट के साथ।
तो मैं पहले आपको ये बताता हूँ स्क्रीन शेयर करके जी जी कि ये जो मेरी रेन की जो सीरीज थी, दरअसल जी। रेन से पहले मेरी एक सीरीज थी नॉस्टैल्जिया, हाँ हाँ। यानी अतीत राग, जो खेतों से बैलों से जुड़ा हुआ था वो। तो मैंने ये जैसे ये उस वक्त ये एक पेंटिंग आपको दिख रही होगी, ये दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, जी जी सर। ये। हाँ, अभी तो नहीं दिख रहा है, पर पहले हाँ अभी, हाँ ठीक है, दिख रहा है सर, हाँ जी। हाँ, तो ये एक स्ट्रीट में जैसे छाता लेके ये कपल क्रॉस कर रहा है रोड, जी और पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है पूरी स्ट्रीट में, अभी बारिश चालू है। जी तो इस तरीके से ये मतलब नॉस्टैल्जिया के लास्ट लास्ट में ये दो पेंटिंग बनी थी मेरी। ये जैसे जी कोई बाजार है और उसके ऊपर भी छाते लगे हुए और बारिश हो रही। तो ये तकरीबन रेनस्केप सीरीज में मैंने अलग अलग, जैसे ये रेन और मल्टीट्यूड, रेन एंड सॉलिट्यूड, ऐसे भी मैंने उसमें सब्जेक्ट लिए हैं। और जैसे ये जो है ना, ये सूरत का सीन है, ये हाँ ये और इसमें मैंने ये अमृता शेरगिल जो आर्टिस्ट है थी, हाँ। महिला, जी इंडिया की फर्स्ट महिला आर्टिस्ट थी, तो उसको मैंने एनआरकी विटनेस के तौर पर यहाँ पे बैठाला है। और पीछे खिड़की में जो उसकी ही तीन बहनें, थ्री सिस्टर्स नाम की जो पेंटिंग है, वो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के तौर पर कोट की है। यहाँ पे जी तीन जो है वो आदमी बैठे हुए, ये पुराने टाइप का एक पुराना घर है। तो यहाँ पे देखो नीचे जो पानी बह रहा है उसमें ट्यूब्स तर रहे हैं। तो हाँ इस तरीके से ये मैंने अलग अलग तरीके के, जैसे ये बारिश हो रही है और ये लोग दौड़ रहे हैं, और ये जैसे बारिश के मौसम में कोई सुबह, अर्ली सुबह जो ये दूध देने जा रहा है। तो ये सब्जेक्ट पानी से, जैसे स्कूल के बच्चे हैं बहुत सारे पानी में ये स्कूल जा रहे हैं। तो जी एक जो मतलब मैं ये मानता हूं कि रेन मीन्स वर्टिकल रिवर। जी। तो ब्यूटीफुली पुट, हाँ, रेन हाँ, मीन्स वर्टिकल रिवर। तो ये मैंने इसमें मतलब पहला ही ये मेरा इस कैटलॉग का सेंटेंस था, रेन्स मीन्स वर्टिकल रिवर। और इसमें ये भी था कि आ, बहुत सारी चीजें मैंने इसमें कोट की थी। जैसे ये आपने देखा होगा कि ये बारिश में खेत बैलगाड़ी लेके औरतें जा रही हैं, जी और ये शहर की बारिश है। ये वाटर एंड व्हील करके एक पूरी सीरीज थी कि ये पूरा का पूरा, जब बारिश के बाद कीचड़ हो गया है शहर में, तो ये पूरी की पूरी मोटरसाइकिल कैसे दब गई है। तो ये सारी की सारी एनआरकी है, जैसे ये स्कूल जा रही हैं बच्चियां साइकिल को लेके। तो ये सारे फॉर्म जो मैंने ऑयल ऑन कैनवास पे 4x3 की साइज पे हाँ किए हाँ हाँ। थे, और ये स्पैचुला नाइफ से पूरा का पूरा काम मैंने जी किया था। तो ये पूरी सीरीज आप देखें तो मतलब बारिश के अलग अलग मूड है इसमें। ये रेन एंड एब्स्ट्रक्शन भी है इसमें। ये देखिए नदी में बाढ़ आई है और नदी के किनारे लोग छाता लेके उस बाढ़ को जी। देख रहे हैं। वाह। ये कुछ प्रेमी युगल बारिश का लुफ्त ले रहे हैं। ये मतलब रात की बारिश में सड़कें कैसी जी दिखाई जी। देती हैं। वाह। एक्चुअली ये ये सीरीज मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ आपका ये वाला काम, क्योंकि मैं वो इमी के आपके काम से इतनी ज्यादा ओवरवेल्म्ड हूँ। मेरे पास करीब बहुत सारा इमी का काम का आपका मेरे पास हाँ, कलेक्शन वो है। वो 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 भी मेरे पास बहुत है। वो भी जी उसका भी पूरा मैं प्रोसेस दिखाता हूँ। ये देखिए, जी ये देखो यहाँ पे बहुत से लोग, ये ब्रिज के ऊपर से पानी जा रहा है, जी जी तो उधर वाले उधर है, इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं डरते डरते। तो ये जी। इसकी प्रदर्शनी है ना, जो पहले वहां हुई थी दिल्ली और हाँ जयपुर और बम्बई में। हाँ। तो ये 6x4 की साइज के और 4x3 की साइज के ये कैनवास है ये।
ये देखिए मतलब पूरा एटमॉस्फेयर इसमें ये स्पैचुला नाइफ से ऑयल कलर में बनाया गया है। ये जैसे बारिश तो है लेकिन पीने का पानी नहीं है, तो पानी बांटने के लिए ये लोग आते हैं और फिर पानी के लिए लाइन लग जाती है। तो ये सिचुएशन भी मैंने इसमें ड्रॉ की है। जैसे ये बाढ़ आई है तो ये कहीं पे ये नदी पार करके ये लोग जा रहे हैं उस तरफ, सेफ जगह पे जा रहे हैं। ये स्कूल के बच्चे हैं जो स्कूल छूटती है तब ये जा रहे हैं। जी। ये कोई कपल जो गार्डन में हाँ। टहल रहा है। तो ये बहुत सारी, ये जैसे ये सिटी का ट्रैफिक है बारिश में, और ये वेटिंग कर रहे बस स्टैंड पे स्कूल के बच्चे। ये भी ये देखिए छाता, ये मतलब ये पूरा का पूरा जो एटमॉस्फेयर मैंने ये बारिश में ये इस सीरीज में मैंने पकड़ने की कोशिश की। जी। और पूरी की पूरी जो स्टाइलाइजेशन है वो इम्प्रेशनिस्टों का स्टाइलाइजेशन है। हाँ हाँ हाँ। जैसे जैसे ये वैन गोग और वगैरह काम करते थे, तो ये जी पूरा का जी पूरा, जी। लेकिन इसमें एक लाइवनेस मतलब बारिश की गति आपको देखने को मिलेगी। दिखने, हाँ। कभी झरमर हाँ। की मिलेगी, कभी एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग हेली जैसे कहते हैं वैसी बारिश है, जी। कभी बाढ़ की तरह की बारिश है। तो ये तरह हाँ। तरह के, हाँ ये देखिए। तो बहुत प्रकार की ये जैसे ये ये एक वाह। सिटी इट्स शेयर डिलाइट, हाँ, ये सब देखने को मिले। और शायद लाइव देखने मिलेगा हाँ, तो वो तो एकदम बहुत 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 ही, मजा आएगा। ये देखिए ये धूप जी। में जैसे बारिश होती है हाँ हाँ। कई बार, तो उसका भी ये लुत्फ मैंने लिया है। ये मतलब ये इतना मतलब डीपली मैंने इन सारी चीजों में, ये मतलब ये रेंजस्केप सीरीज की मेरे लगभग 250 से ज्यादा पेंटिंग्स हैं। अच्छा। 250 से ज्यादा पेंटिंग्स वाह, इस, दिस इज, ये बहुत ही सुंदर है। तो हाँ। आपकी जो आपने आपका जो सेटिंग जो जिससे आप इंस्पायर होते हैं, हम्म हाउ हाउ डू यू बेसिकली, ऑफ कोर्स इंस्पिरेशन के लिए स्पॉन्टेनियस भी होता है, बट हम्म एक आर्टिस्ट के माइंड पे एक प्लान बनता है कि इसको मैं कैसे डिपिक्ट करूंगा। हाँ, बिल्कुल बनता है। दरअसल क्या है कि जो कलाकार के मन में मानस मूर्ति जब गढ़ती है ना, उसमें वो हाँ। बाहर का एटमॉस्फेयर भी उतना ही पावरफुल होना चाहिए, जी। और अंदर का भी जो है जुझाव जो है इसके लिए, वो भी उतना स्ट्रांगली, और दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं तब ये जी। बात बन के निकल के आती है। तो जैसे ये इंसिडेंट्स आपने पहले एक्सपीरियंस किया है, तब ये मतलब पेंटिंग में उभर के आ रहा है, राइट? हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे वो तो बहुत ही सिंप्लीफाई, जैसे यूमी के वो जो सारे जो इलस्ट्रेशन करते हैं ना, हाँ ये हाँ ये सारी पेंटिंग का जो स्टडी है हाँ। वो मुझे उस रिसर्च में काम में आता है, जब कोई बिल्कुल। टॉपिक मुझे मिलता है जी। कि जैसे आपने यहाँ पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर आपने पी लिया है, जैसे हाँ तो हाँ हाँ, उस बिल्कुल। उसके रूबरू हो रहे हैं आप, तो किस जी तरीके से आपको फॉर्म को सिंप्लीफाइड करना है, किस तरीके से जी फॉर्म को एलोबरेट करना है, किस तरीके से जो इश्यू है उसको जी किस तरीके से प्रिडिक्ट करना है, वो सारी चीजें जो है वो मैंने उसमें जो जी। अपने यूमी के हैं वो अब मैं उस पे जा रहा हूँ। वाह, हाँ। तो ये, मेरा एक बहुत नाइव सवाल है आपसे जी जी, कि जो इम्प्रेशनिज्म है, जो हम्म, इम्प्रेशनिस्ट आर्टिस्ट हैं, हाँ हम कॉमन ले पर्सन जो हम लोग हैं वो हाँ ज्यादा हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो एवरीडे लाइफ से हम रिलेट हाँ कर पाते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनका एक साधारण सा मानसी जी वो था मैनिफेस्टो, हाँ। कि इम्प्रेशन यानी कि प्रभाव, जी जिसको हम प्रभाववाद कहते हैं हिंदी में। जी तो प्रभाव कैसे उत्पन्न होता है? जी तो प्रभाव उत्पन्न होता है लाइट से। जी। अगर प्रकाश न हो, ये भी इन सारी आप पेंटिंग्स में देख रहे हैं कि लाइट बिल्कुल। के जो जी मोमेंट है
वो हाँ, मैंने बहुत अच्छी तरीके से पकड़े। तो ये जो लाइट का प्रभाव ही हमें पानी दिखाता है, ये हाँ, लाइट का प्रभाव ही हमें ये आकाश दिखाता है, लाइट का प्रभाव ही हमें ये पात्रों को दिखाता है। ये जैसे टायर पे ये ग्रे पूरा हाँ। एटमॉस्फियर है, तो पूरा शेड मूड जो लाइट के साथ बनता है, जी, ये जी, नाइट जर्नी लाइट के साथ बनती है। ये देखिए इसमें ये कोट वाला आदमी कितनी जल्दी से भाग रहा है, और ये जी, कारों की जो ये ब्रेक जी, लाइट हैं, वो रेड भी इसमें इम्पोर्टेंट है। तो ये जो सारे लाइट के, क्योंकि ये इम्प्रेशनिस्टों ने यही मैनिफेस्टो में कहा था कि सारी चीजें जो हमें अनुभूत होती है, उसका मूल जी, कारण जो है वो प्रकाश है। जी। तो हमें आकारों को छोड़ के प्रकाश पर कंसंट्रेट करना चाहिए, लाइट पर कंसंट्रेट करना अच्छा। चाहिए। हुँ। तो इसीलिए उन्होंने एनाटॉमी वगैरह छोड़ दिया। हाँ, तो वही चीज को मैंने इंडियन कंसर्न में मैं ये लेके आया हूँ कि ये जो जैसे मैंने अपने आसपास के दृश्यों को देखा बारिश के समय, हाँ। मैं जो महसूस करता हूँ कि उसको केवल प्रकाश के हिसाब से कैसे उसका प्रकटीकरण किया जाएगा। तो जी, उसको ही ध्यान में रखते हुए ये पूरी सीरीज मैंने बनाई है। तो ये इम्प्रेशनिज्म की जो बात है वो आपने सही पकड़ी है कि वो पात्र होते हुए भी उसकी अनुभूति जो है, जी। वो प्रभाव की अनुभूति जो है वो महत्वपूर्ण है। हाँ, क्योंकि मैं जैसे अभी ये आपने पिक्चर दिखाया जो हुँ, एक ले अभी जो महिलाएँ खेत पे हैं और हुँ, जैसे इसके पहले वाला जो तो ये मैं साइकिल अपने वाला। आप को उस जगह में महसूस कर पा रही हूँ कि मैं साइकिल में जा रही हूँ या बिल्कुल, साइकिल बिल्कुल। मेरी फँस हुँ, गई। तो हुँ। आई थिंक फिर हम पेंटिंग से ज़्यादा जुड़ जाते हैं। हम उसको महसूस कर रहे हैं वो और हम इसलिए अपने वो आप को उस इसलिए कि जगह पे देख पा रहे हैं। क्योंकि वो हर आदमी के जीवन का एक हिस्सा है। बिल्कुल, हाँ, हाँ। तो वो कला ज़्यादा में रिलेट भी कर हाँ, पा रहे हैं हम कला उसको। में तभी दिक्कत होती है कि आप जब जीवन से हटकर और अनुभूति से हटकर कोई क्रिएशन करते हैं, तब कम्युनिकेशन का गैप हो जाता है। तब मुझे कभी-कभी मतलब कुछ कलाकारों को ये कहना पड़ता है कि इसमें तो मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन वो दिखता नहीं है। जी। तो ये उसका बातें अपना एक हैं। जॉनर है, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट्स में हाँ, बनाने का भी एब्स्ट्रैक्ट अपना एक जॉनर जॉनर है। है। जी। वो है ना, मतलब उसकी भी एक अलग मज़ा बिल्कुल। है। मैंने जैसे किया। आपका ये पिक्चर मैंने पहले देखा हुआ था, जो महिलाएँ खेतों में हाँ, हैं। हाँ, हाँ, मैं वो आपको मैं शेयर करना चाहती हूँ मेरे अंदर क्या फीलिंग्स आई जी, थी जी, क्योंकि जी। मेरा बचपन कोलकाता के गाँव में बीता था और मैंने अपने नानी और उनकी सहेलियों को ऐसे इस देखा होगा। सिचुएशन में देखा था, मेरे धान रोपते आस-पास तो हुए। रोज़ अभी मिलता है कि जैसे ये बारिश की सीज़न आएगी और चावल जी। जब बोए जाएँगे, हाँ, ये धान चावल बोती है मैंने औरत। देखा है तो मुझे एकदम से मैं मतलब आई वेंट बैक ऑलमोस्ट 50 इयर्स बैक। या, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल कि ये पूरे मतलब ये देखिए कि ये पूरे इंडिया का सीन है। जी। इसीलिए ये पेंटिंग इंडियन है और जी, इम्प्रेशनिस्ट की पेंटिंग है, और जी, बारिश तो जो है वो वो जो है पूरे विश्व की है चेतना। जी, तो जी, विश्व की चेतना के साथ मैंने इंडियन कॉन्टिनेंट को जोड़ा है और गाँव को जोड़ा है। उस विचार जी, को जोड़ा है कि जो आदमी के ज़हन से कहीं न कहीं वो चीज़ गुज़री है। जी, तो ये इस तरीके से ये पूरी मेरी जो सीरीज़ थी, वो रेनस्केप की बनी है। तो जी, मैं अब उस पे आता हूँ अपनी जो है ख़ास करके ये उसमें किस तरीके से काम हुआ। वो भी इंटरेस्टिंग देखिए, अब जैसे वो इम्प्रेशनिस्ट की मैंने बात की, हुँ, अब ये देखिए, हुँ, ये केवल ब्लैक स्ट्रोक में जी, एक आसमान से और धरती का और 2 पात्र खड़े हैं, जी, ऐसी अनुभूति का मतलब ये जब हुँ, ये शुरू करते हुए मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। कि हुँ, कैसे उस सब्जेक्ट को, उस चीज़ को केवल ब्लैक एंड व्हाइट में या मतलब मोनो कलर में, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में तो मैंने बनाया था, लेकिन जब छपता था तो वो ब्लू में, कहीं वायोलेट में, इस ऐसे कलर स्कीम में, सिंगल टोन में जब छपता था तो बहुत ही सुंदर लगता था वो। तो ये जैसे स्ट्रोक मैंने आसमान और ज़मीन कैसे अलग होंगे इसमें, लेकिन ये काम करते-करते जैसे ये एक देखिए आप, जी, ये इसकी सिंपलिसिटी, ये मैंने एक बूँद बनाई है बारिश की। जी, और नीचे जो बूंद गिरेगी तो जैसे ही वो सर्किल पानी में होते हैं,
हम्म। तो वो सर्किल बनाए हैं और एक कपल बनाया है और खेती का एक पौधा लेके बहुत ही बहुत ही कम स्ट्रोक्स में ये मुझे खेती और पानी की बात कहनी थी। जी तो ये एक बूंद भी खेती के लिए बहुत कीमती है। जी अब जी अब देखिए ये भी मैंने जैसे खेत में ये एक आदमी यहाँ पे वो कुछ काम कर रहा है, पानी खेत में डाल रहा है। जी एक खेत का कुछ पार्क है और ये पंछी 2 उड़ रहे हैं और आकाश में फिर से बारिश की तैयारी हो रही है। जी। तो ये सारे स्केचेस जो है वो शुरू में जब अभी मतलब सब्जेक्ट पे नहीं गए थे, हाँ मतलब जैसे-जैसे कोई भी रिसर्च पेपर या हाइलाइट होता था यूमी का, हाँ तो उसके सब्जेक्ट से पहले का ये सारा रिसर्च वर्क था कि हम फॉर्म ऐसे लेंगे, पानी ऐसे बताएँगे, अगर कुआँ जी दिखाना है तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, पानी का मटका दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हैं। तो ये सारे हमने वर्कआउट पहले किए थे। अगर मुझे जी कुछ ये इरिगेशन के प्लांट दिखाने हैं, हाँ। तो भी एक ज्योमेट्रिकल कंपोजिशन में ऐसे दिखा सकते हैं कि ये हम्म पाइपलाइन जा रही है हम्म तालाब हम्म से और हम्म ये जो किसान है वो दिख रहा है, उसके हम्म। ये बैल दिख रहे हैं, उसकी झोपड़ी दिख रही है और खेत का पार्क मतलब बहुत कम स्ट्रोक में जी एक अलग तरीके का कंपोजिशन किस तरीके से होता है, एक संयोजन किस तरीके से और उसको पूरे के पूरे ब्लैक एंड व्हाइट में बैलेंस्ड किस तरीके से किया जाएगा। तो जी। उस बात को ध्यान में रखते हुए ये मैंने पूरे वर्कआउट किए थे। अब धीरे-धीरे वो सब्जेक्ट भी आने लगे कि हम्म। जैसे कुएँ से पानी लेना है तो ये कुआँ है। देखो कुएँ की मैंने अलग पर्सपेक्टिव बनाई है इसमें। जी टॉप लेवल से कुआँ बनाया है, साइड से जैसे पाइप है, साइड से मनुष्य है और एक पूरी पर्सपेक्टिव में पीछे का तालाब और सूरज उगता हुआ और पेड़ और पूरे ये जो है पूरा इंडियन एटमॉस्फेयर दिखे उस तरीके का एक पूरा वातावरण मैंने जी दिखाने की कोशिश की है। तो ये और ये कंपोज़िशन जिस तरीके से ये बनते हैं, तो उस सब्जेक्ट को धीरे-धीरे हम जैसे-जैसे उसमें अंदर उतरते गए कि जैसे यहाँ पे भी कुआँ है, इरिगेशन हम्म है, पानी का देखो ये पाइप जा रही है, घर है, थोड़ा डेवलपमेंट और ज़्यादा हुआ है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे झोपड़ियाँ थी, जब जी हम इरिगेशन नहीं करते थे तब झोपड़ियों में रहते थे, लेकिन जब थोड़ा इरिगेशन का काम हमने किया तो हमें छत अच्छी मिली, खपरेल वाली जी छत मिली और ये सीढ़ियाँ-वीढ़ियाँ वाला मकान मिला और हमारा पार्क भी बहुत बेहतरीन ये जैसे ये औरत के हम्म। चेहरे पर आप खुशी देख सकती हैं। जी तो ये चीज़ें धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमने इन इलस्ट्रेशंस में डेवलप की, कि सब्जेक्ट जी को सिम्प्लीफाइड करते हुए भी सारे एलिमेंट और सब्जेक्ट की जी जो गहनता है उसको किस तरीके से दिखाया जाए। अब देखिए यहाँ पे ये जो नरेगा और हम्म। मनरेगा की जो बात थी तालाब खोदने हाँ की, हाँ हाँ, तालाब बना खोदने हाँ, की। जी जी ये लोग वो काम कर रहे हैं। तो इससे भी एक एटमॉस्फेयर बनता है कि ये तालाब है, यहाँ पे ये लोग खोद रहे हैं, तो अब की बार जब बारिश आएगी तो ज़्यादा भरा जाएगा। ये पाइप है लेकिन कुएँ में भी अभी पानी नहीं है क्योंकि तालाब में पानी कम हो गया है। तो ये सारे सब्जेक्ट को लेके लोग ये ख़ास करके आप जो ये कॉस्ट्यूम देख रही हो, वो सौराष्ट्र का है। ये सौराष्ट्र का जो है, जी। वो हम्म। क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ये काम होता था उस समय। ये मतलब मेरे ख़्याल से 2004-5 के जो हमारी यूमी के हुए थे रिसर्च पेपर, जी उसमें ये सारे बनाए गए थे। अब देखिए कि यहाँ पे जैसे कि एक एलिमेंट और बढ़ गया कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई। जी तो वो वहाँ पे जब तक डीज़ल पंप थे, अब यहाँ पे मीटर लगा के ही केवल हमने बता दिया और यहाँ पे एक खंभा दिखाई देता है बिजली का। जी हाँ, और ये जो लेडी है वो अपने हस्बैंड के लिए खाना लेके जा रही है। जी। तो ये इससे प्रेडिक्ट होता है कि उसका हस्बैंड अब दिन भर वहाँ पे काम करने लगा है खेत में। हम्म। तो उतना काम अब है वहाँ पे। जी पानी और वो सारा काम जो है वो पानी की वजह से है। जी तो ये पानी मैंने दिखाया है उसके पीछे बड़े-बड़े जो ये क्रॉप जो उसने बनाए हैं, उसमें जी अच्छी खासी फसल निकल रही है इसलिए उसको मतलब
वो करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए भी वहाँ रहना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें और कल्चरल डिस्कोर्स भी एक इससे बाहर निकलता है। तो बिल्कुल। वो एक हमने इसमें मतलब आप देख रहे हैं कि किस तरीके अब देखो कि एक जैसे था कि अब ग्रुप होने लगे जी। कि ग्रुप में जैसे ट्यूबवेल्स बनाने वाले थे तो ग्रुप में ट्यूबवेल सोसाइटी कोऑपरेटिव सोसाइटी करके करते थे तो ये 6-7 आदमी इकट्ठा होकर एक डिस्कशन कर रहे हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट का हम्म। तो हम्म। वो अलग अलग उनके सारे खेडूत है ये किसान है सारे हम्म। तो इस तरीके से ये बात इसमें इलस्ट्रेट मैंने करने की कोशिश की है जी। और एक पूरा का पूरा हमने इसको स्टाइलाइजेशन धीरे धीरे एक हाँ यूमी की अपनी आइडेंटिटी है इससे जी। क्योंकि बिल्कुल, पिछले हाँ, बीस एग्जैक्टली मेरा बीस वही कहना सालों है। में 20 हाँ सालों में हमने इतने इसके फॉर्म्स पर काम किए हैं लेकिन वो स्टाइलाइजेशन हमने नहीं छोड़ा है जी। स्टाइलाइजेशन में कंपोजिशन में हमने बहुत इन्वेंटरी काम किए हैं नए नए हम्म। इसमें से हम खोज के लाए हैं लेकिन आप ये सारी चीजें देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये यूमी का है जी। अब जैसे बड़े सब्जेक्ट भी फिर बाद मेरे में पास कम नहीं तो अभी हम्म, क्योंकि मैंने बहुत यूवी के इवेंट्स अटेंड नहीं किए हैं, पर मेरे पास खुद भी अभी तो 30 एक तो आपके स्केचेस हैं। हाँ हाँ मतलब ये तकरीबन 200-250 होंगे हमारे पास हाँ तो इसमें से कुछ एक पे बात होगी आज जितने दिखा सकता हूँ वो दिखाऊंगा जैसे ही ये फिर अब बड़े लैंडस्केप होने लगे अब हाँ रिसर्च भी बड़े पैमाने पे होने लगी जैसे ये हाँ यहाँ हाँ। पे आप देख रहे हैं कि एक कैनाल निकल के आ रही है जी जी। तो आप देखो कि जब तक कुआं था ट्यूबवेल था अब उसमें से कैनाल पर हम आ गए हैं जी जी। तो कैनाल से जब इरिगेशन होता है और सब पानी मिलने लगता है तो अब जैसे यहाँ पे भी देखो ये औरतें चावल की हम्म। वो हम्म। कर रही हैं खेती अब ये भी देखो कि ये मशीन डीजल का है मतलब कुछ कुछ एरिया में जिस तरीके से काम होता है ये जो ड्रेस जो है वो बिहार का है जी। तो ये बिहार के रिसर्च के ऊपर कोई टॉपिक रहा है कि इन लोगों हाँ ने जैसे पीछे जो आदमी दिखाई दे रहा है एक मुखी जैसा आदमी मतलब दिखाई दे रहा है हाँ गांव का वो सरपंच जैसा और ये हाँ। सारे लोगों को गाइड कर रहा है खेती कैसे करनी चाहिए पानी कैसे यूज करना चाहिए तो ये सारी चीजें हमने इसमें कोशिश की है कि अब देखो कि ये वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं बारिश के पानी का बचाव कैसे करते हैं जी उसका है कि ये जैसे ये वहां छत से ये पानी निकल के आता है और एक कुआं जो है उसमें जाता है तो ये वाटर हार्वेस्टिंग जो है उसका है पूरा का पूरा एक घर में हमने ये पूरा जी। एक सीन से ही पूरी ये चीज दिखाई है तो ये वाटर हार्वेस्टिंग जो करते हैं कि पानी हम्म। मतलब बारिश का पानी कैसे बचाना है तो वो इसमें है अब देखो ये इलेक्ट्रिसिटी वाला एक और आ गया कि अब लाइंस भी खेत में आ गई है इलेक्ट्रिक की जी। तो ये सबसे पहले जो हमने किया था काम उसके ये सारे हैं मतलब 2004-5 के आसपास के जी अब देखो अब ये बड़ी लाइन भी यहाँ पे जा रही है ये उड़ीसा का है जी। ये हाँ हाँ उड़ीसा हाँ। का है, इसलिए और ये टेम्पल फॉर्म से पता चल रहा हाँ है। हाँ तो ये औरत की कॉस्ट्यूम भी उड़ीसा की लेकिन स्टाइलाइजेशन देखो हमने अपना छोड़ा नहीं है थोड़ा नहीं है जी। उसको पकड़ के तो ही आपका जैसे दो क्लियर जैसे प्रोजेक्ट मैं बोलूंगी सीरीज है जो हमने हम्म, पहले देखा और हाँ अभी। तो हाँ मैं जस्ट एक बीच में इंटरप्ट करके ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हम डिस्कशन फॉर्मेट में ये सेशन ले जी रहे जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो जैसे आपने पहला जो नेचर स्केप रेनस्केप में हमको हम्म एनलाइटन किया कि हम्म वो एक सीरीज थी, तो इसको भी आप क्या सीरीज कहेंगे? हाँ क्योंकि सीरीज का आपके ये है ना, सीरीज सीरीज मतलब है और एक एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन की रिसर्च। सीरीज है मतलब जी ये पर्टिकुलर क्या हो कि वो जो सीरीज थी वो तो मेरे मन में जैसे जैसे आए हुए मैं वैसे मैंने बनाए हाँ। थे और ये रिसर्च और प्रोजेक्ट हाँ ये बेस्ड भी है। हाँ रिसर्च आपके प्रोजेक्ट बेस्ड क्लाइंट है। पूरी सीरीज है हाँ इसमें मुझे अब कहेंगे कि ये उड़ीसा का है तो मुझे कुछ उड़ीसा का एलिमेंट डालना पड़ेगा जी जी जी। अब तो आप उड़ीसा अपने क्लाइंट के साथ एक्चुअली यू आर आल्सो डूइंग रिसर्च एंड गोइंग हाँ टू द बिल्कुल फील्ड बिल्कुल एक्सपीरियंसिंग इट।
जी बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल करना पड़ता है, मतलब ये पूरा पढ़ना पड़ता है, उनकी बातें सुननी पड़ती है, वो कोई रिसर्च करके जी आता है, वो वहाँ के कुछ फ़ोटोग्राफ्स भी हमें दिखाता है, जैसे हमें कुछ पता नहीं है उन चीज़ों के बारे में। तो तुषार जी के जी मैंने बहुत सारे उनके पर्सनल इलस्ट्रेशंस भी मैंने किए हैं। जी जी। हाँ अब देखिए कि ये अलग एक मतलब बहुत सारे लैंडस्केप में खेती हो रही है। अब हम्म, जैसे-जैसे पानी की ये जो सुविधाएँ बढ़ती हैं, तो वैसे-वैसे खेती का एरिया बढ़ता जाता है। जी जी जी। हाँ, डाइवर्सिटी भी दिख हाँ, रही है इसमें, हाँ, अलग अलग खेती हो रही है। हाँ, अलग-अलग खेती हो रही है, अलग-अलग तरीके से हो रही है। तो ये अब देखिए कि हाँ, ये मतलब किसी ये सौराष्ट्र का है ना, ये साउथ का है। साउथ का है जी, नारियल हाँ, दिख रहे हैं नारियल बहुत है सारे। इसलिए साउथ का है। ये लुंगी पहना हुआ आदमी है और इन्होंने हाथ में नारियल पकड़ी और जो जिस तरीके की साड़ी पहनी है, जी तो ये साउथ में भी अब जैसे ये वहाँ पीछे तो नदी जा रही है, जी। लेकिन उन्होंने उसमें से भी ये कैनाल बना के उसकी अ, पानी की हम्म, से खेती करने की शुरुआत की थी। तो उस टॉपिक पे किसी का रिसर्च होगा तो उस एरिया को ध्यान में रखते हुए ये पूरा का पूरा कंपोजिशन बना है। जी ये मेरे ख्याल से बिहार का है। ये जिस तरीके की साड़ी पहनी जी। है इसने, ये महिला हम्म। ने, तो ये बिहार का पूरा सीन लग रहा है। तो वहाँ पे भी किस तरीके से काम होता है, ये भी हाँ, उसी इन का सब है। में इरिगेशन काफी हाइलाइटेड है क्योंकि हाँ, इन्हीं का भी काफी काम है हाँ, इरिगेशन मतलब में। जी ये खास करके जो शुरू के जो इन लोगों की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी, शुरुआत जी की, वो खास करके एग्रीकल्चर का इरिगेशन किस-किस तरीके से होता है जी और जी। किस तरीके से किया जाए, तो ज़्यादा हाँ से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सकता है, जी। उसको ध्यान में रखते हुए ये सारे रिसर्च पेपर थे। हम्म अब देखिए ये भी बिहार का ही है, क्योंकि हम्म नहीं ये सौराष्ट्र का है, ये हम्म। सौराष्ट्र का है। जी जी जी। ये जिस तरीके से ये सौराष्ट्रियन काऊ और भाई हुँ, भी दिख रहे हैं। हाँ, बैल दिख रहे हैं और जिस तरीके की ये औरत ने साड़ी पहनी है जी जी। हाँ और जिस तरीके से इसने पगड़ी बाँधी है जी। और जिस तरीके का वो एरिया है, जी लैंडस्केप हाँ। हुँ, उसको ये लेकिन देखो एक यहाँ पे मतलब जो पुराना है एक वो मैंने इलस्ट्रेशन डाला है कि पहले जी जो ये औरतें 2 डंडे लगा के वो पानी निकालने जैसे पैर चलते हैं ना, वैसे जी ही पुरानी सिस्टम कुएँ में से पानी निकालने की थी। जी। तो उस सिस्टम को यहाँ पे दिखाया गया है कि बार-बार जैसे बहुत मतलब आज़ादी हाँ से पहले इस तरीके से ये औरतें पानी निकालती थी कुएँ में से। अब देखो धीरे-धीरे वो मतलब समृद्धि बढ़ने लगी है। हम्म तो इसलिए ये जो जैसे मटके का जो डेकोरेशन है, हाँ 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 वो हाँ। समृद्धि दिखाता है। जी ये देखो यहाँ पे स्कूल भी आ गई है। हाँ 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 हाँ। हुँ, प्रोग्रेशन जैसा लग रहा है। हाँ। जी तो धीरे-धीरे ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें बढ़ती हैं। ये पर्टिकुलर जो है क्रॉप, अब ये देखिए कि ये जो इरिगेशन जो है उसके हम्म। सिस्टम में चेंज आया। जी स्प्रिंकलर आ गया। स्प्रिंकलर से जो इरिगेशन कैसे होता है, जी उसको हमने यहाँ पे दिखाया है। अब ये जैसे मीटर रीडिंग और ये सारी चीज़ें जब उसको जो देते हैं, बताते हैं कि किस तरीके से अब होगा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है मेरी। हेलो। हेलो? कैन यू हियर मी। हेलो। मैं आपको सुन पा रही आपकी हूँ। आवाज़ नहीं आ रही है। मैं सुन पा रही हूँ आपको। आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़। ओह आ रही है अभी। हाँ, थोड़ी-सी दूर से जैसे आती हो वैसी है। अच्छा पर मैं तो कोई पोजीशन चेंज नहीं किया और मैं आपको एकदम थोड़ा-सा क्लियर मतलब सुन पा रही हूँ। हल्का-हल्का कुछ मतलब माइक-वाइक हिल गया होगा। हाँ मैं आपको एकदम क्लियर सुन पा रही हूँ अब और कोई दिख बात रहा नहीं, है। तो अब देखो अब ट्रैक्टर भी आ गया है इसमें, तो जी ये जी सारी जी। चीज़ें जिस जिस तरीके से हाँ हाँ
ये होती है डेवलपमेंट धीरे-धीरे दिख रहा है पेंटिंग सोसाइटी बनाई है स्केचिंग और में। ये जो टेक्नोलॉजी भी इसमें जैसे कि पानी डाइवर्ट करना है तो किस तरीके से करेंगे, जी, जी, जी। कैसे-कैसे करेंगे, ये सारी योजनाएँ रिसर्च पेपर में जैसे होती थी, हाँ, अब हाँ, महिलाएँ भी वो जैसे हाँ। पुरुष करते थे तो वुमेन महिलाओं एम्पावरमेंट की की भी वो दिख थोड़ी रही है। कंट्रीब्यूशन जैसे यहाँ पे कपास की खेती हो रही है, हाँ, 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 तो महिलाएँ मिलके अब कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाने लगी है, वैसा किसी हाँ, का हाँ, एक रिसर्च पेपर था। हाँ, ये पंचायत को समझाते हैं, वहाँ के बाहर के ऑफिसर आके, सरकारी लोग आके, कि किस हाँ, तरीके से आपको इस सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो हुँ, अब देखो ये मैंने पूरा बड़ा लैंडस्केप और कर दिया कि जिसमें विमान से भी पानी डाला जाता है, टैंकर से भी हुँ, पानी आता है, हुँ, छोटे तालाब भी है, एक पूरा का पूरा जो पूरा जी, इंडिया का जो सीन था, उसको हुँ, यहाँ पे मतलब टाइटल पे प्रेज़ेंट करने की कोशिश की और जो हमारा जो स्क्वायर फॉर्म था, उसमें से हुँ, मैंने बाउंड्री तोड़ के पेड़ों को बाहर निकाल दिया है। हाँ, तो हाँ, हाँ, पानी हाँ, का असर इतना हुआ है कि अपने सारी हमने बाउंड्री जो हमारी लिमिटेशंस जो थी, वो यहाँ हुँ, पे बाहर निकल गई है और बहुत हुँ, अच्छा विकास हो रहा है। अब हुँ, देखो ये सारे स्क्वायर से बाहर पेड़ निकले होंगे। हुँ, 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 ये भी अलग तरीके की ये भी उड़ीसा की साइड का लग रहा है मुझे। जी, अब देखो ये सारे पेड़ जो है, वो बाउंड्री हुँ, तोड़ के बाहर निकलने लगे। जी, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद क्या-क्या उसमें हुँ। उन इलस्ट्रेशंस में ये ट्यूबवेल तो जब थे ये पेन एंड पेपर है ना? कि पेंसिल आवाज़ एंड नहीं पेपर? सुनाई देती मैडम। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही मेरी? कम हेलो? सुनाई देती है, आवाज़ नहीं आती है। अच्छा, मैं ये बोल रही हूँ कि ये पेन एंड पेपर है, पेंसिल और पेपर है बहुत कि दूर ये से आवाज़ आती है और थोड़ा नज़दीक कुछ हट गया है माइक आपका। अच्छा, ओह! बहुत स्ट्रेंज है मुझे लग रहा है। माइक अ, आपका हट गया है। आपका स्केचिंग फॉर्मेट हाँ, क्या है? अभी आके गया। हाँ, आपकी आवाज़ प्लीज़ आके गई। कंटिन्यू। अच्छा, प्लीज़ कंटिन्यू। थोड़ा हाँ, हिल गया लगता है मुझे आपका जो है ना यहाँ से, ये अच्छा। जो माइक है हाँ, आपका वो हिल गया लगता है। नहीं मेरे पास माइक नहीं है कुछ, ये पेंसिल है। थोड़ा हिलाइए ना उसको माइक को। नहीं माइक नहीं है वो पेंसिल है सर। अच्छा तो माइक आ नहीं रहा है। बहुत जैसे आप दूर कंटिन्यू करिए, हाँ, आप बस प्लीज़ कंटिन्यू करिए। आ गई। आ गई। हेलो। जी, बोलिए। हाँ, बस आ गई आवाज़। देखिए अब ये थोड़ा सिम्प्लिसिटी करके भी ये सारी चीज़ें हमने इसमें मतलब बनाई हैं। जी, ये पूरे के पूरे जैसे ये स्टॉल लगे हैं, अब मेला भी लगा है कृषि जागृति के लिए जी, गाँव-गाँव में। तो ये पूरा का पूरी जो किसी ने रिसर्च किया होगा कि एग्रीकल्चर के लिए क्या-क्या वो स्टॉल बनते हैं। तो वो सारे साधन नए-नए कैसे मोटर कैसी आई है, ट्रैक्टर कैसे आए हैं। तो ये सारा ज्ञान भी अब उनको वहाँ पे मिलने लगा है। उस तरीके का किसी का रिसर्च पेपर था। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें आप देख सकती हैं कि इस तरीके से ये सिंपल जी, स्केचिंग है मेरी। हाँ, ये मतलब घर में भी अब ये अच्छी खासी अब देखो ये नए स्टाइलाइज़ेशन हमने किया उसका, कई बार हाँ, उसमें करते थे। ये मैंने कुछ रेफ़रेंस के लिए स्केचिंग किए हैं। ये देखो एक तरफ सूखा है और एक तरफ जी, वो बना के वो मतलब पानी आने के बाद स्प्रिंकलर्स और सारी चीज़ों को ये हुँ, करके तो ये सूखा पेड़ हरा हो गया है उसको हुँ, पानी मिलने से। ये ये भी अलग-अलग तरीके के अलग-अलग एरिया के जी, ये सारे इलस्ट्रेशंस हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमने बनाए हैं। जी, अभी जो आपने जो नए देखे थे, हाँ, तो उस पे थोड़ा मैं दिखाऊँ आपको? जैसे ये भी जी, आप देख सकते हैं कि ये नॉर्थ ईस्ट का सीन है। जी, ये नॉर्थ ईस्ट का जैसे पर्वत दिखाई दे रहे हैं, वहाँ के जी, आदमी बदल गए, लेकिन हाँ, अपनी स्टाइल नहीं बदली प्रेज़ेंटेशन की। हाँ, 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 तो ये सारे एरियाज़ में काम करते-करते अब देखिए ये मैं टैंक आपको एक ये टैंकर से आया। ठीक है, अब तो काफ़ी हो गया मतलब टाइम तो आपको जी, जाना भी है कहीं, नहीं? नहीं आपके पास टाइम तो है, हम डिस्कशन भी लेंगे, पर आप दिखा सकते हैं। मैं एक
स्केच आपका मैं लेके बैठी हूँ, हालाँकि मेरे पास बहुत सारे हैं, हाँ, तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ। जी, 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 जी। मैंने पिक किया है उसमें से, पर मुझे शायद मेरा बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा ताकि मैं दिखा सकूँ आपको। जी, 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 जी। ये एक मतलब मैंने इतने कॉम्प्लेक्स आपके स्केचेस भी देखे हैं, हाँ, तो मतलब और मैं मैं मुझे मुझे ये प्रोसेस पूरा दिखाना था ना, इसीलिए हाँ, मैंने हाँ, शुरू से मैं किया। इसीलिए मैं वहीं आ रही थी कि जी, जी। आपने उसको इतना सादगी और सिंपल तरीके से दिखाया हुँ। कि जो मुझे सवाल अभी मेरा पहला ये है कि ये भी एक तरह का इम्प्रेशनिज़्म ही है। जी, बस बिल्कुल। उसका आर्ट फॉर्म चेंज हो हाँ, गया, आर्ट उसका फॉर्म चेंज मीडियम हो गया है। चेंज हाँ। हो गया, मीडियम चेंज हो गया। जी, जी, तो बिल्कुल। मुझे एक चीज़ पूछना था कि ये जो आपके बोल्ड ब्लैक एंड व्हाइट स्केचेज़ हैं, हुँ। वो आपका मीडियम क्या यूज़ किया है ये आपने उसपे? इंक इंक पेपर पे इंक से किया है। हाँ, पेपर इंक पे और इंक से पोस्टर किया। ब्लैक कलर से, पोस्टर कलर जी, से। जी, जी, जी। जी, कहीं-कहीं तो पोस्टर कलर यूज़ किया, हाँ, कहीं-कहीं इंक। हाँ। हुँ। जी, जी। तो आप अभी इतने सालों से मतलब 40 साल तो आपको हो गए हैं काम हुँ, करते हुए हुँ। इस फ़ील्ड में हाँ। एज़ एन आर्टिस्ट। हुँ। मैं सर आपसे अब कुछ सवाल क्योंकि आप एक बहुत अच्छे एजुकेटर भी हैं, ये भी जी, मुझे मालूम है। जी। तो मैं आपसे कुछ सवाल उस आर्ट एजुकेशन और इट्स इम्पैक्ट जो हुँ। समाज में आर्ट का जो बहुत बड़ा रोल है, हमने देखा है दुनिया में समाज में बहुत बदलाव जी। आर्ट ने लेके आए हैं, रिफॉर्म्स ने हुए हैं आर्ट के थ्रू। मतलब मैं तो आर्ट को ही मेजर रिफॉर्मर मानती हूँ, ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट फॉर्म फॉर दैट जी। मैटर। तो आपका जो मैंने काम इतने सालों से देखा है, वो मैंने सेकंड पार्ट ही देखा था। हाँ। रेंस के पार्ट सीरीज़ में से मैं उतनी वाकिफ़ नहीं थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपका अपना जो इतने सालों का एक्सपीरियंस में, आर्ट का जो महत्व है समाज में बदलाव लाने के लिए, आपका क्या एक्सपीरियंस है उस बारे में? ये है कि देखो कला तो है ना, हाँ, वो वो शुरू से जुड़ी हुई है। मतलब जी, हमारे जब ये आप सोचिए कि जब हमारे पास भाषा नहीं थी, जी, हमारे पास कोई कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। जी, हम जब केव में रहते थे, हम जब गुफावासी थे, जी, तब सबसे पहले हमने पेंटिंग बनाई थी। जी, 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 तो ये बिल्कुल। सबसे पहला कम्युनिकेशन का जो है वो ज़रिया जो था वो अ, गुफाओं पे जब आदि मानव ने चित्र उकेरे थे, जी, कुछ दिखाने के लिए कि हम एनिमल का शिकार कैसे करेंगे, तो उसकी प्लानिंग के कम्युनिकेशन के लिए सबसे पहले उसने दीवारों पे चित्र उकेरे थे। जी, तो ये इतना पुराना इसका नाता है। मतलब जी। हमारी जीन्स में, हमारे ब्लड में मतलब चित्रकला तो रसी-बसी हुई है। रस्सी-बसी, बहुत अच्छे से बोला आपने, हाँ, जी, तो वो ये जो रसना-बसना है तो आप देखो कि जब भी कोई छोटा बच्चा मतलब कहीं भी पूरे विश्व का छोटा बच्चा ले लो। जी, छोटे बच्चे के हाथ में आप एक चारकोल या ये चॉक पकड़ा दो। जी, उसको नहीं सिखाओगे तो भी वो लाइनें खींचने लगेगा। जी, कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। जी, क्योंकि वहाँ पे ही उसका कम्युनिकेशन का हैपनिंग शुरू होता है। जी, कि अब देखो कि वो क्या करता है कि सबसे पहले अगर हम बहुत ही रूड तरीके से मैं बताऊँ कि उसके आस-पास में कहीं पानी पड़ा है, जी। तो पानी से वो लाइनें उकेरना शुरू करेगा। अच्छा, हाँ, हाँ, आस-पास में कहीं मिट्टी है, तो मिट्टी में वो रेखाएँ खींचने लगेगा। जी, तो उसको पता नहीं है लेकिन लाइन जब वो खींचता है तब उसको पता है कि कुछ बनता है। हाँ, और मेरी एक लैंग्वेज डेवलप होती है कि जैसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जी, तो वो उसको बिना भाषा से आकार से वो आकारित करना चाहता है, वो कम्युनिकेट करना चाहता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। भले ही हमें उसकी भाषा का पता ना चले लेकिन वो कुछ न जी, कुछ उसमें आप जैसे कि मैं सीखना चाह बताऊँ रहे हैं। हाँ, लाइन का जो प्रेशर है, अभी जैसे आपने कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों में जाओ, तो उनकी लाइन बहुत ही शार्प और बहुत ही स्ट्रेट होगी। क्योंकि उनके पास वो फ्रीनेस नहीं है, वो बंधे हुए हैं। जी, बंधे हुए बच्चों की बंधी हुई लाइन होती है, खुले हुए बच्चों की खुली लाइन होती है। हाँ, बहुत सही कहा, हाँ। और जी, जिस चित्रकार की लाइन जितनी हल्की होगी और फ़ोर्सफुल जी, होगी, उतना ही वो चित्रकार का मनोजगत है वो शुद्ध होगा। अच्छा, जी, हाँ, ये हाँ, क्योंकि हाँ,
क्योंकि वो हल्के से जितना जितने जीवन को जितना हल्के से लेगा उतनी उसकी लाइनें हल्की होगी हल्की होंगी, हाँ। और उसमें उसमें गति भी उतनी जोशपूर्ण होगी, उसको कुछ करना नहीं पड़ेगा और उसमें जी एक रिदम और लय से आपको खुशी मिलेगी और उसी रिदम और लय से दुख भी वो चित्रकार प्रकट करेगा। तो जी ये सारी चीजें मतलब शुरू से ही मतलब समाज के लिए ये चित्रकला जो है वो पहले से ही शुरू हुई थी और आज भी जो जितना भी हम देख रहे हैं अपने आसपास का असबाब और जैसे मैं आपको देख रहा हूँ आपने ये जो कलर पहने हैं वो मुझे जी अपील करते हैं आपने जिस तरीके से चेहरे पे वो माथे पे लगाए तो ये सारी जो फॉर्म है हमारे यहाँ एक बहुत ही अच्छा श्लोक वात्स्यायन के काम सूत्र में लिखा गया है चित्रकला के जी षडांग के बारे में जी जी रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम जी। हाँ रूप हाँ हाँ। भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इति चित्र षडंग जी कमान। ये चित्र के जो 6 अंग है जिसमें रूप भेद करने की जो जिसकी हम पहले से ही करते हैं क्योंकि दूसरी बात ये भी है कि हमें सब कुछ सिखाया गया है चलना जी सिखाया लिखना सिखाया जी। बोलना सिखाया लेकिन मानसी जी मैं ये पूछता हूं आपसे कि आपको देखना सिखाया नहीं सिखाया, सुनना भी नहीं सिखाया, और सुनना और सूंघना भी देखना तो नहीं सिखाया सिखाया। सुनना और देखना सिखाया नहीं और नहीं। यही दो जो चीजें हैं जी वही हमें एब्स्ट्रैक्ट में लेकर जाती है जी 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 हम रूप के अरूप तक जब पहुंचते हैं जी आकार से निराकार तक जब पहुंचते हैं जी। वो गति जब हमारी होती है तब हम उन चीजों को ये पहुंच पाते हैं कि उसके निराकार तक हम इन चीज को लेके पहुंच पाते हैं बहुत अच्छे से कही आपने, आकार से जब हम निराकार तक पहुंचते हैं। हम्म, मैं आपको 3 चित्र एक छोटी बच्ची का दिखाऊंगी 7 जी साल जी के। जी और मैं ये वो मैं बच्ची मेरे यहाँ स्टॉप बहुत स्क्रीन रेगुलर मेरा आती है। शेयर स्क्रीन है वो अभी मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है आपका चेहरा दिख रहा है मुझे और सुनाई भी दे रहा है क्लियर एकदम। हाँ, मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करूंगी। एक छोटी जी जी 7 साल की बच्ची है, मेरे घर रेगुलर आती है। मैं और ये हमारा जो स्क्रीन मैं ये स्क्रीन अ, मेरा स्टॉप शेयर कर देता हूँ आप शेयर स्टॉप शेयर करिए, अब जी हम अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा ले लेंगे। हाँ तो मैं थोड़े से उसके 3 ही स्केच शेयर करूंगी आपके साथ, और मैं कुछ जानना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि वो हमारे घर बच्ची रेगुलर आती है। हम्म तो ये बच्ची का नाम निराली है और हम्म हम उसको प्यार से जीनू बोलते हैं। हम्म। आपको आर्ट फॉर्म दिख रहा है उसका? हाँ बिल्कुल दिख रहा है बिल्कुल दिख रहा है और ये हमारे टेबल पे ऑब्जेक्ट्स रखे हुए हैं। मेरा माउस भी हिल रहा होगा, तो एक शेर जी है जी हमारे टेबल पे। ये हम्म शेर बने हुए हैं। हम्म और हमारी बालकनी में जो फूल, मतलब वो मुझे समझाती है ये। हम्म और मैं हूँ ये, बाई सॉरी, मैं हूँ ये। हम्म ये वो खुद है, और बड़ी वाली जो मैं हूँ यहाँ पे, हम्म ये हम्म मेरा घर है। तो हम्म, ये उसने एक हमारे वेस्ट पेपर पे हम उसको बनवाते हैं, क्योंकि जी बहुत जी जी पेपर्स हाँ यूज करती है। तो वो ये चीजें, ये बच्ची हमारे घर में बैठ के, हम उसको कुछ नहीं बोलते हैं, वो बनाती है। और हम्म। अपने ये देखिए एक दूसरा जी पिक्चर। हाँ। बिल्कुल हाँ तो ये एक हमने उसको एलिफेंट दिया था, ये बनाया। मेरी माता जी थी तो उनने दादी को भी बनाया। मतलब हम्म मैं सिर्फ कहना, ये हमारा घर है बाय द वे। हम्म उसने बनाया है, और फिर जी जी बालकनी में हमारे गमले और सब लगाए जी हैं। जी जी, तो मैं, क्योंकि आपकी पेन ये बना रही है बाय द वे वो बच्ची। हाँ। हाँ और हम उसको कुछ डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने हम्म, आप बना रही है। सॉरी, जी मैं क्लोज करूंगी। जी हाँ। मेरा क्योंकि बालकनी और घर सब आ गया, दादी ने भी बना दिया। हाँ, तो मैं सिर्फ ये इसलिए ये आपको पेंटिंग्स दिखाया कि क्योंकि आपने आकार से जो निराकार जाना। पर बच्चा जब चीजें सामने देख रहे हैं, इतनी छोटी उम्र है और काफी, क्योंकि अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली से आती है। पर उसका जो मन और दिमाग खुला हुआ है, कोई चीज को इमेजिन करना, हम्म और कोई चीज को देख के भी उतारना। हम्म तो हम उसका स्ट्रोक्स देख के, हाँ, संडे संडे आती है हमारे घर, हम उसका स्ट्रोक्स देख के ही थक जाते हैं। जी कि ये सोच के थक जाते हैं कि इसकी इमेजिनेशन कहाँ कहाँ तक जा रही है। जी जी बिल्कुल मैं उसके बारे में थोड़ी टिप्पणी जी, देता तो हूँ आपको मुझे कि थोड़ा जैसे मैंने एनलाइटन कीजिए कि जैसे हम बच्ची जैसे को जैसे हम गाइड जैसे नहीं करना चाहते, क्या नहीं करना चाहिए? मैं वही कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग जो सीखे हुए लोग हैं हाँ वो आकार से निराकार की ओर जाना चाहते हैं हाँ वो निराकार से आकार को पकड़ के लेके आती है हाँ 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 उसके मन में मतलब वो गठन नहीं है वो रियाज नहीं है हाँ लेकिन वो निराकार की अनुभूति है उसके पास
हाँ, हाँ, हाँ। वो उसके पास वो स्टडी नहीं है कि मेरा हाथी है तो हाथी कैसे बनाऊं, दादी है तो दादी कैसे बनाऊं, लेकिन वो दादी के निराकार को जानती है, हाँ, हाँ, हाँ। वो हाथी के निराकार को जानती है। जी। जो उसका एब्स्ट्रैक्ट है वो पकड़ के लेके आते हैं। वो मतलब फ्लावर है तो फ्लावर ऐसे बनते हैं, तो फ्लावर के निराकार को पकड़ती है कि ये कुछ पंखुड़ियां होती हैं, ये कुछ टहनी होती हैं। तो वो उसी तरीके से उसको, और उसके पास दूसरी चीज ये होती है कि घर क्या है, तो घर का कंसेप्ट उसके पास है बिल्कुल क्लियर। हाँ, मतलब हाँ, घर हाँ। का उसने आकार जो बनाया कि घर में मतलब देखो कि वो जहां बैठी है वहां से वैसी खिड़कियां नहीं दिखाई देगी। हाँ, हाँ, हाँ। तो वो जो जिन खिड़कियों को महसूस करती है वो वहां पे डाल रही है, हाँ, हाँ, हाँ। जिन सीढ़ियों को हाँ। महसूस कर रही है वहां पे डाल रही है, क्योंकि जी, जी, उसके जी। अचेतन में ये सारी चीजें पड़ी रहती हैं। जी, जी। तो वो हुँ। अनुभूति को केवल रेखाओं के मतलब उसमें जो लाइन है, ये लाइन, अब मैं हाँ। आपको कहूंगा कि इन लाइन के साथ आप जो गुफावासी आर्टिस्ट के हाँ। चित्र है, हाँ, हाँ। जी। तो ये लाइन और वो लाइन दोनों की एक ही होगी। जी। आप इसमें देखिए उसने साइकिल दिखाया है। दिखाई देखी, हाँ, मैंने देखी, फ्रूट्स हाँ, मैंने देखी। मतलब और ऊपर हमने उसको बोला कि ये सब तो खुले जगह पे है तो हम्म, अपना घर भी बनाओ। तो हम्म, घर का भी उसने चित्रण किया है। तो हम्म। हम काफ़ी आश्चर्य हो जाते हैं उसके इमेजिनेशन को देख के, तो मैं समझना चाहती थी कि एग्ज़ैक्टली वो सोच क्या रही है? हाँ, मतलब वो सोच नहीं रही है, महसूस कर रही है। हाँ, अब जब वो सोचने लगेगी ना, हाँ। तब ये सारी चीजें उसकी बदल जाएगी। हाँ, तो हमने आबिद सुरती सर से बात किया था, काफ़ी हाँ, 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 रिनाउंड वो भी पेंटर जानता हैं। हूँ मैं। हाँ, तो वो भी हमारे स्पीकर आ चुके हैं। तो मैंने उनसे पूछा था कि बच्ची हमेशा आती है तो हमको मैं क्या करूँ? तो सर ने बोला कुछ मत करो। कुछ मत करना, हाँ, ये सारे कलाकारों का एक ही आंसर मैं होगा। तो सिर्फ़ उसके स्केचेस सँभाल के रखती हूँ अभी क्योंकि बस और हम कुछ नहीं। मैं तो हमेशा मतलब एक मेरी मास्क सीरीज भी रही है। जी, जी, वो जी। जो लास्ट में हाँ, मतलब हाँ, 2008 में मैंने बनाई थी और वो तो हाँ, बहुत हिट रही थी मास्क की। हाँ। तो जी, मास्क सीरीज में मेरी यही फिलोसॉफी है कि हम जी। पर्सनालिटी डेवलप करने में इतने मुखौटे पहनाते हैं, हाँ, हाँ। हम भाषा सीखने जी, जी। हाँ, तो वो बाँधते चले जा रहे हैं बांधते चले लेयर्स। जाते हैं हम खोलने के बजाय, और हम कहते हाँ, हैं कि हम खोलने के लिए कर रहे हैं और लेकिन जा जी, रहे हैं बांधते। जी। तो ये तो मेरी सबसे बड़ी वीडियो में एजुकेशन में अनलर्निंग नहीं है ना, तो वो हम फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, तो मतलब यही तो है, ये एजुकेशन इसीलिए थी कि मनुष्य अच्छा बने। हाँ, लेकिन वही एजुकेशन मनुष्य पे विश्वास करना नहीं सिखाता। हाँ, मतलब जैसे कि एक स्कूल का या एक यूनिवर्सिटी का सिस्टम होगा, वो सारी चीज़ें राइटिंग में माँगेगा। हाँ, हाँ। हाँ, दूसरा मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन तो है ही नहीं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ कि इमोशन सारे खत्म हो गए आपके। हाँ, हाँ। आपकी और सारी लिखने में आप स्ट्रगल आपकी कर रहे हैं क्योंकि हमको शब्द भी लिमिटेड दिए हैं कि आपको हुँ, यही शब्द यूज़ करने हैं। मतलब नहीं, अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, शब्द इतने घिस गए हैं हमारे, हाँ, तो सारे रूढ़ हो गए हैं व्यवहार हमारे शब्दों के कारण। जी, जी, बहुत सही बोला आपने। हाँ, क्योंकि उसमें वो कम्युनिकेशन की वो इनोसेंसी रही ही नहीं है उन शब्दों में। और हम ना पूरा स्ट्रगल शब्दों को कंपोज़ करने में हम पूरा हाँ, स्ट्रगल में लग गए हैं, तो इमोशंस उसमें से लूज़ हो जा रहे हैं। इसलिए नंदलाल बोस ने जो है एक बहुत अच्छी बात कही थी जी, कि पुराने ज़माने में पहले जो विद्यार्थी था, हाँ, पहले जो छात्र था वो व्याकरण सीखता था, जी, और व्याकरण में जब वो बहुत ही पक्का हो जाता था तब वो कविता की रचना करता था। जी, और जब कविता की रचना करता था तब उससे उस कविता को सुनकर या उसके सर्जन से उससे आनंद उत्पन्न होता था, जी, और वो आनंद उससे ऊर्जा उत्पन्न होती थी उस उत्पन्न आनंद होती से। थी। हाँ, तो नंदलाल बोस कहते हैं कि अब क्या हो गया है कि अब स्टूडेंट जो है व्याकरण सीखता नहीं है, ग्रामर हाँ, नहीं सीखता है, कविता नहीं बनाता है, वो सीधा आनंद की खोज करता है और ऊर्जा उत्पन्न कर लेता है। हाँ, तो वो ऊर्जा के बहाव में तो बहता चला जाता है, जी। लेकिन वो फिर व्याकरण पे जाता नहीं है कभी। फंडामेंटल तो पे पहुँच मतलब शुरू ही नहीं कर पाए फिर हम। हम्म, हाँ। हाँ, तो वहीं पे जी, उसकी जी, चीजें छूट जाती हैं। जी।
मैं आपको एक छोटा-सा 2 स्केचेस और शेयर करना जी, चाहूँगी, मेरे खुद के हैं। जी, जी। पर काफ़ी आपसे भी इंस्पायर्ड हैं, दूसरे आर्टिस्ट से भी इंस्पायर्ड हैं। जी, ये जी। मैंने मणिपुर में बनाया था अरे वाह! लोकतक लेक को देख के। हाँ, पर हाँ। मैं एक्चुअली और सीखना चाहती हूँ आर्ट वर्क। जी, ये वाराणसी आप देखेंगे, जी, जी, जी। आपको दिख रहा होगा। हाँ, हाँ। और मैं रेगुलर जैसे ग्रीटिंग्स कार्ड्स वगैरह बना जस्ट मैं 2 इसीलिए 2-4 ही शेयर कर रही हूँ हुँ, आपसे क्योंकि हुँ। सेशन है आपका। पर मैं चूँकि जी, जी, बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। लिए इससे ये ये एक तो अरस-परस प्रोफ़ेशन है। नहीं है। हाँ? ये तो जी, अरस-परस है ना चीज़ें। हाँ। पर ये एक कंस्ट्रक्टेड आर्ट वर्क है। हुँ। ये मैं इमेजिनेशन से नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं देख के आई जितना मुझे समझ में आया, जो थोड़ी मेरी बहुत लिमिटेशन है। पर एक आर्ट स्टूडेंट या आर्ट एंथुसियास्ट हाँ। अगर वो इनहेरेंटली या जेनेटिकली उतना आर्टिस्ट नहीं है, हुँ। तो हम एज़ एन आर्ट एजुकेटर और वो आर्ट सीखना चाहेगा, तो किस हद तक वो सीख सकते हैं? इमोशंस को कैसे। पर देखो देखो ये है कि ये तो पूरी यात्रा है। जी, पर यहाँ पे कहीं से भी चलना शुरू किया जा सकता है। जैसे जी, रवींद्रनाथ टैगोर ने 65 साल में चित्रकला पे चलना शुरू किया। जी, जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल, हाँ। हाँ, तो ये कहीं से भी यात्रा ये शुरू हो सकती है जब क्योंकि इसके लिए जो क्योंकि ये हम जब मैंने शुरू में कहा कि हर बच्चा पेंटर होता है। जी, बाय डिफ़ॉल्ट पेंटर है। वो हाँ, होता है जैसे मैंने हाँ, एक चीज़ और जी, बताऊँ आपको कि आपने वो चित्र बनाया होगा जब स्कूल में आप पढ़ती थी तब। जी, वो नेचुरल सीन जो है, हाँ। वो पहाड़ियों वाला, हाँ, हाँ, हाँ। वो पहाड़ियों के बीच में से निकलते हुए सूर्य वाला। जी, वो सब बच्चों ने बनाया शायद, उसमें से हाँ, नदी नहीं बह रही है। हाँ, वो जो बलखाती हुई नदी जो बह रही थी, हाँ उसके जी, किनारे एक नारियली का पेड़ था। बिल्कुल। और नीचे एक कोई बच्चा बैठा हुआ है। नीचे एक झोपड़ी बनाई थी और एक बोट वाला जो नाव में था और बिल्कुल, खास करके ऊपर जो हवा में पंछी उड़ते थे, बिल्कुल और सूरज के किरणें। किरणें थी। तो अब ये चित्र क्या है? ये हमें किसी ने सिखाया नहीं था उस वक़्त। जब जी, आपने बनाया होगा तब आपने ऐसी बलखाती नदी नहीं देखी है, आपने ऐसे जी, पर्वत नहीं देखे हैं और आज तक इन पर्वतों के बीच में से निकलता हुआ सूरज तो आज तक नहीं देखा है। जी, उस उम्र में। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये पेंटिंग है क्या? मैं जब टीचर्स की क्लास लेता हूँ ना जब ये हाँ, हाँ, एप्रिसिएशन हाँ, हाँ, कोर्सेज़ वगैरह तब मैं हाँ, ये उदाहरण ये हाँ, देता हूँ, ये एग्ज़ाम्पल कि ये जो चित्र है वो नेचुरल सीन नहीं है। हाँ, कंस्ट्रक्टेड है ये। नहीं, ये जो है ये हमारी जीन्स का चित्र है। हाँ, अच्छा, हाँ, 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 हमारा जो शरीर जो कंस्ट्रक्ट हुआ है जिन पंच तत्वों से, उन पंच ओके। तत्वों की प्रतिकृति है। हाँ, क्योंकि हम खेत दिखाते हैं, नहीं, जमीन है, इसमें नहीं जैसे सॉइल दिखाते हैं, वाटर इसमें दिखाते हैं। इसमें जल है, इसमें पृथ्वी है, इसमें जी, आकाश है, इसमें अग्नि है और इसमें वायु है। हाँ, ये जी, जो पंछी और जो झुकी पंछियाँ, हुई हाँ, हाँ, नारियल है वो हाँ। वायु के प्रतीक है। जी, जी, सूर्य बहुत जो है सही वो बोला, अग्नि हाँ। का प्रतीक है। हाँ, मैंने हर कभी बच सोचा ही नहीं इस एंगल से इस पेंटिंग। और मेरे ख्याल से हर बच्चा हर ये बच्चा पेंटिंग बनाता है। बनाता है। इट्स अ ग्लोबल फिनोमेना। हाँ, क्योंकि यहीं से हमारी उत्पत्ति हुई है। जी, जी, और जो अब इसमें भी जो वेरिएशन जहाँ पे होते हैं, जी, जी। जो बड़े पर्वत बनाएगा उसमें पृथ्वी तत्व ज़्यादा होगा। हाँ, 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 जिसका सूरज बड़ा होगा वो बहुत ही गुस्सैल और क्रोध वाला अग्नि उसमें ज़्यादा होगा। हाँ। जिसके और जो पंछी बड़े बल होंगे वो कहीं वायु। टिकने वाला नहीं होगा, वायु होगा। और जिसके पानी बलकाते होंगे। हाँ, तो ये भी बहुत सही। मतलब ये अंदर क्या चल रहा है वो भी चित्रों से जाना जा सकता है। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब हाँ, हाँ, जैसे जैसे मैंने आपके गंगा वाला वो दृश्य देखा, हाँ। तो उसमें जो आपकी एक क्वालिटी है परफेक्टनिस्ट की, जी, मतलब आपको हर चीज़ पूरी की पूरी चाहिए। हाँ। इंटेंशनल नहीं है पर मतलब वो मतलब आपके गुण हैं वो। हाँ, तो मतलब हाँ, कंप्लीट चीज़ चाहिए आपको, तो इसीलिए जो वहाँ की बोटें हैं, उसके किनारे हैं, वो
उसके रिफ्लेक्शंस है, वहां तक आप पहुंच जाते हैं। अगर जी। घर है तो उसकी खिड़कियां है तो उसके जॉइंट भी कैसे हैं। हाँ, अंदर दिखना चाहिए। हाँ। हाँ, हाँ। वो डिटेलिंग भी है क्योंकि वो परफेक्शनिस्ट का लक्षण है। जी जी। तो ये मतलब ये चित्रों से जाना जा सकता है कि किस आदमी में क्या चल रहा है। अच्छा, और इंसान का नेचर भी पता हाँ, चलता नेचर भी होगा। पता चलता है। मतलब जब बिल्कुल। रंग यूज़ करता है तो और भी उसकी भावात्मक स्थिति क्या है। हाँ। जब वो जी। टेक्सचर यूज़ करता है तो उसके मतलब संवेदना उसकी कैसी है, वो सारी चीज़ें कैसी हैं, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं जो आपके पेंटिंग से जो अट्रैक्ट हुई थी, क्योंकि मेरा इतना क्रूड फॉर्म और जस्ट बेसिक, मैं तो पैशनेट कभी नहीं, उतना मैं टाइम नहीं देती हूँ। बट डेफिनिटली डेवलप करना चाहती हूँ ये स्किल, इसीलिए मैं आपके आर्ट वर्क से इतनी अट्रैक्ट हुई थी कि जैसा मैं बनाना चाहती हूँ, वैसा मैंने एक आर्टिस्ट को पाया, देखा, हुँ, जो इतना एक्सप्रेशन पूरा, मतलब जो डिटेलिंग है, जो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेचर, और जो-जो चीज़ें दिखानी है, वो इतने सिंपल तरीके से दिखा रहे हैं कि जैसे ये पेंटिंग को मुझे हाँ, देखना है, तो ये पूरी स्टोरी अपने आप में हाँ, आ एक पूरी जाएगी। किताब है। हाँ, एक्चुअली ये पूरी हाँ, पेंटिंग है। अपने आप में एक किताब है हाँ, है ना, है ना। कि इस, हाँ, तो हाँ, है आपने पूरी। वो वही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा आपके काम के लिए मैं एप्रिशिएट करती हूँ। बट जी, हमको टाइम का भी ध्यान देना है, हुँ, और ये बहुत अच्छी बात थी जहाँ हम खत्म कर सकते हैं आज का डिस्कशन, जी, कि जी, जो हर बिल्कुल। बच्चा सबसे पहला ड्राइंग बनाता है, वो ही पंच तत्वों से ही बना है, और मेरे लिए आई थिंक आज का सबसे बड़ा टेक अवे और लर्निंग भी है। सो मैं आपको इस मोमेंट पे आई थिंक हम लोग सेशन को एंड भी कह सकते हैं, जी, एंड जी, थैंक यू सो मच कन्नू थैंक भाई। यू आपको बहुत-बहुत पहले धन्यवाद। पहली बात एज़ अ ह्यूमन बीइंग जानने का भी मुझे आज मौका मिला, इतना जी, अच्छे से हमने इस डिस्कशन को किया, और इसके साथ-साथ आपके आर्ट वर्क का भी मुझे एक अच्छा खासा साझा हुआ। शायद मैं कुछ इसमें से थोड़ा सीख पाऊँ, और कुछ जी, जी, आपको भी कहीं हम और जी, 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 बेसिकली बुलाना चाहेंगे। बिल्कुल। और हमारे डब्ल्यू फॉर डब्ल्यू फाउंडेशन में हम ऑलरेडी 330 सेशंस हम कर चुके हैं, जिसमें काफ़ी अरे! आर्टिस्ट भी आए हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया था। हुँ, तो हम लोग ये सेशंस करते रहते हैं। हर हुँ, हफ्ते हमारे पास वेडनेसडेज़ फॉर वाटर होता है, हुँ। फ्राइडे वाटर्स होता है, जिसमें आज एक सेशन था, तो आप और कहाँ के मंडे अहमदाबाद मंथ में स्थित हैं? मैं अहमदाबाद बेस्ड हूँ सर। पर पानी हूँ, बहती रहती हूँ। आज मैं भोपाल में हूँ, कल जी, जी, अहमदाबाद में हूँ, कल जी, जी। नडियाद में हूँ एक्चुअली, अरे वाह! परसों अहमदाबाद में हूँ। तो हम फ्राइडेज़ को जैसे करते हैं हर सेशन, मंडे को हम मंडे मंचिंग विथ वुमेन फॉर वाटर करते हैं, जहाँ हम वुमेन के वाटर एंगेजमेंट को एप्रिशिएट करते हैं। तो ये सेशन खत्म करने के पहले आई वुड लाइक टू अनाउंस द नेक्स्ट वीक्स इंटरेस्टिंग सेशंस वी हैव। Next week on March 26th, Wednesdays for Water, we are coming back with Water as Commons and focusing on the laws and policy dimensions. And we will actually look at the social accountability part of it. Very interesting session. We have an international outlook to it and a very localized outlook focusing on Maharashtra. Next Wednesday, Friday, we have another interesting session, and we are going to Friday Water Talkies. मीन्स हम सिनेमा दिखाएंगे, और सिनेमा, मेकिंग ऑफ द सिनेमा पे बात करेंगे। पूरा सिनेमा हम नहीं दिखाते हैं, पर मेकिंग ऑफ द फिल्म पे बात करेंगे। दैट इज ऑन अप्रैल March 28, sorry, and we are going to talk about Satyagraha, Truth Force, and the film is made by Australian filmmaker Lisa Sabina Harney, and she will be there, and the film is made on the Jal Satyagraha, which is carried out by Matri Sadan Haridwar. सो मातृ सदन के गुरुजी भी होंगे, और वहां के ब्रह्मचारी भी होंगे। इस बहुत फिल्म को बनाना, जल सत्याग्रह के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ वो आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे। डू स्टे ट्यून टू अस, वी आर इंचिंग टुवर्ड्स 350 सेशंस, and we want to continue the water conversation, as we strongly believe water conversations are extremely important for water conservation. At W for W, we are continuously trying to build a water collective through this water conversations. Thank you so much, Kanu bhai, and thank you all of you who are watching us on YouTube and who are here at Zoom. We hope that you will join us and keep supporting and encouraging our initiative on water conversations. Thanks a lot. Thank you थैंक यू, so much. थैंक यू। Thank you.